یہ بتائیں کہ آپ نے ویسے مجھے پہلے کولڈ ڈرنک پلائی تھی، ابھی آپ نے مجھے جامع شیریں، لیکن آپ کا فیوریٹ ڈرنک کون سا ہے؟ 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 جامع شیریں۔ اللہ کو حاضر ناظر کر کے، اللہ اور رسول کو حاضر ناظر کر کے، میری 2 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی میں قسم کھا کر کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو وہ بے شک نہ بچیں، ٹھیک ہے۔ میری بیٹی نے آج تک کبھی بھی یہ بات نہیں بولی کہ میں ماما کسی کو پسند کرتی ہوں، اور نہ ہی یہ لوگ رشتہ لے کر آئے۔ یہ جو بول رہے ہیں نا ہم رشتہ لے کر آئے، 2 3 4 بار گئے، یہ ہے وہ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ میری بیٹی کے پاس کوئی فون نہیں تھا، میری بیٹی نے آج تک فون کبھی یوں کر کے نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ میری بیٹی سمپل سی، سادی سی، بھولی سی میری بچی ہے، گڑیوں سے کھیلنے والی میری بچی ہے۔ میری بچی کے اندر تو ہوشیاری چلاکی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ رشوت ہے اس ملک کے اندر، رائج۔ آپ جتنا پولائٹلی اس کو بولنا چاہتے ہیں بولے، میں پولائٹ نہیں ہوں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ایک بچی کے والدین کے پاس ایک کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے کہ ہماری شادی کو ابھی 17 سال نہیں ہوئے تھے جب ہماری بچی اغوا ہو گئی، تو یہ بچی 18 سال کی کیسے ہو سکتی؟ جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، آپ نے یہ طاہرہ عبداللہ کی بات سنی، دعا زہرا کی والدہ کی بات سنی، اور ایک آپ نے زنیرہ جو تھی ماہم، ان کی ویڈیو دیکھی۔ ابتدا میں یہ تینوں چیزیں دکھانے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ پر کچھ حقائق واضح ہو سکے، آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ یہ معاملہ اصل میں جا کس طرف رہا ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے ویلا کیا تھا اس میں نے تمام تفصیلات دی تھیں۔ وہ ایک انٹرویوز کی جو سیریز آف انٹرویوز شروع ہوئے، جن میں زنیرہ کا انٹرویو تھا، دیگر لوگوں کا تھا، اس میں کیا کنٹراڈکٹ ہے، کس طرح چیزوں کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے، کس طرح ایک پوری کہانی بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک چیز دوسری کے ساتھ میچ نہیں کر رہی، دوسری چیز تیسری کے ساتھ میچ نہیں کر رہی، اور ہر لمحے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے جو ہے وہ کہانی بنانے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ بڑے بڑے وکلاء اس میں انوالو ہوئے۔ ذرا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اس بچے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ظہیر کا والد جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں ڈرائیور ہے۔ جی بالکل، وہ ظہیر جو 22,000 روپیہ دعا زہرا کا یہ کہتے ہیں کہ وہ جی اس نے 22,000 روپیہ کرایہ دیا، اس کی تو 22,000 تنخواہ اس کے باپ کی ہوگی۔ اس کا بھائی کلرک ہے، مطلب ایک کلرک، بھائی کلرک ہے اور باپ مالی ہے، اور یہ ساری صورتحال ہے۔ بھائی کا اپنا سارا خرچہ ہے، باپ کا پورا خرچہ ہے، اور اس کے بعد 22,000 روپیہ یہ دے رہے ہیں، اور یہ جناب آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور وہ جی کراچی تک۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ کیسے یہ مطلب پاکستان میں مختلف جگہوں پہ کیسے رہے۔ یہ مطلب کہتے ہیں ہم آزاد کشمیر گئے تھے، فلاں گئے، پورا ملک گھوم لیا، اب ہم دبئی جائیں گے۔ تو بھائی دبئی آپ کو کون لے کے جائے گا؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوگی کہ ایک بندہ جس کا ایک بچہ، ایک 16-17 سال کا بچہ جو ابھی سیکنڈ ایئر میں تھا، اس کا باپ جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کا جو ہے وہ مالی ہے، بھائی جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں باپ نے بڑی مشکل سے کلرک کروایا ہے، ڈرائیور ہے باپ اور بیٹا کلرک ہے۔ تو یہ کیسے مطلب اتنے، اور پھر وہ کہہ رہی ہیں ماں انٹرویو میں کہہ رہی ہیں کہ جی اس کو پچھلے 1.5-2 ماہ سے ہم پیزے کھلا رہے ہیں اور اس کو جناب برگر کھلا رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں اخراجات کس طرح چلتے ہیں، مہنگائی کتنی ہے، مالی اور ڈرائیور باپ ہے اور اس کا بیٹا، بھائی کو تو سائڈ پہ رکھے نا، بھی کلرک کو صرف باپ بیٹے کی پرورش کر رہا ہے نا، باپ بیٹے کو خرچ دے رہا ہے۔ تو ایک ڈرائیور ہے پنجاب یونیورسٹی کا، وہ اپنے بیٹے کو جو اس کی بیوی آئی ہے 22,000 روپیہ پہلے وہ دیا، اور پھر اس کو جناب وہ روزانہ کی بنیاد پہ پیزے اور برگر کھلا رہا ہے۔ تو یہ ان اٹ سیلف چیزیں اتنی کنٹراڈکٹری ہو گئی ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں۔ اچھا پھر ایک اور چیز آتی ہے، وہ جامع شیریں درمیان میں پڑی ہوئی ہے۔ اچھا اب یہ کیا وہ آیا جامع شیریں جو درمیان میں پڑی ہوئی ہے، وہ جامع شیریں والوں کی مرضی سے انہوں نے اس انٹرویو جیسے ہوتا ہے نا، رکھوا دیتے ہیں مختلف پروگراموں میں اپنی پروموشن کے لیے، تو آیا جامع شیریں والوں نے اپنی پروموشن کے لیے رکھوائی تھی؟
अगर तो जामे शीरी वालों ने अपनी प्रमोशन के लिए रखवाई थी वो, तो बाईकाट जामे शीरी की एक मुहिम चलनी चाहिए। क्यों चलनी चाहिए? क्योंकि वो किस तरह का मतलब कंटेंट सामने, किस तरह के कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि मुल्क में बेहयाई बढ़े, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं मुल्क में बेटियां जो हैं वो बाप और माँ को वो विक्ट्री साइन इस तरह दिखाए कि जी हम तो कामयाब हो गए। वो मतलब क्या चाहती क्या जामे शीरी? अगर तो उनकी मर्जी के बगैर रखी गई है तो उन्हें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि जिस तरह वो आपने वीडियो भी देखी इशारे कर रही है, जामे शीरी का बता रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मर्जी के बगैर रखी गई है। तो उस पर अब मेरे ख्याल में ये मेरी राय है, ज़ाती किस्म की राय है। आगे चलते हैं, इसमें मजीद आपको मैं कुछ बातें बताता हूँ कि बाईकाट जामे शीरी की तो मुहिम चलनी चाहिए, क्योंकि अगर जो भी कोई भी प्रोडक्ट होगी जो इस मुल्क में जो फाशी उरियानी और इस तरह की चीज़ों को मतलब बढ़ोतरी देगी, उसको मतलब उसके लिए काम करेगी, उसके लिए पैसा देगी, तो फिर यकीनी तौर पे हमें अपने माशरती नाम्स को बचाना है। हम भाई हैं, बाप हैं, बेटे हैं। हम नहीं चाहते कि कल आने वाले दिनों में इस माशरे में यही एक मामला चल पड़े। अच्छा, वो फिर मोहतरमा किस तरह का कह रही हैं जी वीर ज़ारा की तरह, जिस तरह वो जनाब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आ गए, आप भी कराची से जो सिंध से पंजाब में आ गए, तो ये अजीब व गरीब सूरत हाल है। अच्छा, फिर आपने जो पहले मोहतरमा ताहिरा अब्दुल्ला को आपको पता है ताहिरा अब्दुल्ला कौन है? ताहिरा अब्दुल्ला एक सिविल सोसाइटी का चेहरा, और उन्होंने हमेशा औरतों के हकूक़ की बात की है। तो वो ये कह रही हैं इस लड़की के साथ रेप हुआ है, यानी शादी तो आप बाद में कर रहे हैं, तो इस बच्ची के साथ रेप हुआ है और रेप की कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, प्राइमरी एविडेंस कुछ होता है। अच्छा, ये बात आप जरा समझिएगा, बड़ी जरूरी है। कुछ प्राइमरी एविडेंस होता है। क्या होता है? बर्थ सर्टिफिकेट प्राइमरी एविडेंस होता है, उसके बाद बेफाम प्राइमरी एविडेंस होता है, नादरा रिकॉर्ड। अब तो सारा कंप्यूटराइज हो गया ना, तो इस बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट, नादरा रिकॉर्ड, उस वक्त मतलब इसके बाप को पहले से मालूम था कि मेरी बेटी का ये इशू बनना है, तो मैं उसका बर्थ सर्टिफिकेट में थोड़ी एज कम लिखवा लूँ और मेरी बेटी ताकि मतलब उस वक्त मुझे फ़ायदा हो जाए। जब ये बच्ची अभी पैदा हुई थी, बेफाम, नादरा रिकॉर्ड, ये सारा कुछ मतलब ये सारा कुछ इसलिए किया गया था। अच्छा, कब डॉक्टर को कब इन्वॉल्व किया जाता है? डॉक्टर को तब इन्वॉल्व किया जाता है जब इब्तदाई मतलब मिसिंग हो, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट ना हो, बर्थ डेट ना लिखी हुई हो, अच्छा उसका बेफाम ना हो, नादरा के वो जो एक ट्री बनती है ना फैमिली ट्री, उस फैमिली ट्री में ठीक तरह से चीज़ें ना हो, तो फिर डॉक्टर वो कलाई से चेक करते हैं। वो मतलब साइंस जितनी भी तरक्की कर ले, जो नेचुरल चीज़ है, वो कहते ना घर दे जम्या दे साल या दंद। माँ बाप तो एक एक दिन गिनते हैं बेटे का या बेटी का, उन्हें एक एक दिन का एहसास होता है। मेरी बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है कि जब वो पैदा हुई उससे लेके एक एक दिन मैं उसके साथ गुजार रहा हूँ, एक एक दिन इंजॉय कर रहा हूँ, खुदा की रहमत है। तो कैसे हो सकता है ये? मतलब ताहिरा अब्दुल्ला जैसे कह रही हैं, ये तो गैंग की वो बात कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि वो इस बच्ची को निकाह से पहले जो इसके साथ किया गया वो यकीनी तौर पे इसके साथ रेप किया गया है। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये तस्वीर देखें, ये उसी उसकी इंटरव्यू किया है। इसमें ये होले से जो नज़र आ रहे हैं, ये परछाइयाँ नज़र आई, ये कौन है? कौन सर पे खड़ा हुआ ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहा है? कौन है? और इसीलिए मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि सुनहरा माहम को शामिल तफ्तीश किया जाए और उससे पूछा जाए तुम पहले दिन से राब्ते में थी ना, तो तुम्हारे पास ये इतलात कहाँ से आई? मैंने ये भी कहा सुनहरा माहम से ये भी पूछा जाए कि ये मामला किस तरह चला, तुम्हें किसने तुम्हें इनसे मिलाया, और जिस तरह तुम इनकी प्रमोशनल वीडियोस कर रही हो, क्या इस्लाम या हमारा मुआशरा या सोसाइटी इस तरह की प्रमोशनल वीडियो ऐसे मामलात की इजाज़त देती है? और फिर उसकी माँ जो है वो रो रही है, बाप चीख रहा है, और पंजाब यूनिवर्सिटी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने लाऊंगा इंशाल्लाह अगले वीलॉग्स में। मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि ऐसे मामलात में पंजाब यूनिवर्सिटी का पहले भी नाम आया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ये मतलब एक अगर ये जिस तरफ आप मामला जा रहे हैं, कोई गैंग निकलता है तो आया उसका तल्लक कहाँ से है, किस तरह है, ये जो स्लीपिंग सेल्स हैं इनका तल्लक कहाँ से है, ये किस तरह काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम आने वाले दिनों में सामने लाएंगे आपके सामने। लेकिन अब वो डॉक्टर जो इन्वॉल्व हुआ वो कहाँ पे गया, कहा जा रहा है वकील जो है रामे साहब दुआ के वालिद के, वो कह रहे हैं कि उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसने गलत बनाया था। अब उसमें मतलब एक बच्चा जिसका बाप ड्राइवर है, वो लाहौर हाई कोर्ट में महंगे वकील,
कराची हाई कोर्ट में महंगे वकील, बाय एयर आना जाना, वो सारा कुछ कैसे अफोर्ड कर सकता है? वो मतलब मुझे कोई इसमें शक नहीं कि ये मामला इतना सादा नहीं है, और इससे वंस फॉर ऑल ये अगर इंसानी स्मगलिंग का मामला है या जो भी मामला है, इससे एक टेस्ट केस बनाना चाहिए, इसको देखना चाहिए, इसमें से हकाइक निकालने चाहिए, और ताकि ये मसला एक बार हल हो जाए ना, ये मसला बार बार आगे ना बढ़े। इससे पहले अच्छा ये फ़र्क क्या पड़ा, ज़रा ये जाते जाते मैं आपको बता दूं, दुआ ज़ारा के वालिद ने स्टैंड ले लिया। अगर किसी वालिद को ये पता चले उसकी बच्ची भाग गई है, कहने का ये मकसद है उसे ये बताया जाए कि आपकी बच्ची भाग गई, हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास है, वो कराची से लाहौर आ गई है, तो वो बाप इज्जत के लिए चुप कर जाता है। वो बाप के मैं लाहौर कहाँ जाऊँ, मैं क्या चक्कर लगाऊँ, शादी हो गई, उसके आने जाने उसका मतलब वो, लेकिन ये दुआ के बाप को मैं मतलब ना क्रेडिट दूंगा इस चीज़ का, उन्होंने इस मामले को उठाया। अब एक मतलब इसमें अब सिविल सोसाइटी, ये तायरा अब्दुल्ला आई है ना, मुबशर लुकमान भी कह रहे थे, अब सिविल सोसाइटी को सामने आना चाहिए, अब सिविल सोसाइटी को इनका मतलब फराज़ करवाना चाहिए, इस तमाम मामले को मतलब हतमी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए। जब तक ये मामला हतमी अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे, इस तरह दुआ की तरह कई वाक़यात होते चले जाएंगे। तो आप ये देख लें, ये मतलब पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी देख लें, उसमें मैंने पूरा उस इंटरव्यू का पोस्टमार्टम किया था कि किस तरह हकाइक को उसमें जो है वो रद्दो बदल करके और एक रिकॉर्डेड और टेम्पर्ड किस्म का और प्लांटेड किस्म का और स्क्रिप्टेड किस्म का इंटरव्यू किया गया, और कितने उसमें झोल थे वो सारा मैं बता चुका हूँ। लेकिन अब ये है मामलात यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं और मामलात आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें पाकिस्तान के इदारों को किरदार अदा करना चाहिए, और इसमें आने वाले दिनों में मज़ीद अहम इंकशाफात होंगे। तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से फोकस कर रहा हूँ कि वहाँ से इससे पहले भी ये एक दो केसेस में नाम आए इसी रिलेटेड, तो वो क्यों नाम आते हैं, कौन है, किसका कनेक्शन है, तो आने वाले दिनों में उस पर भी चीज़ें लेके आएंगे। लेकिन अब तक के लिए यही है कि ये कहा जा रहा है कि दुआ को एक बार फिर गायब किया जा सकता है। दुआ को गायब किया जाता है तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? और फिर वही बात कि बाप जो है वो ड्राइवर है तो बेटा 22,000 कैसे दे रहा है, और जो सेकंड ईयर में पढ़ता है बेटा वो पिज़्ज़े और वो और इतने इन यूट्यूबर और वो वकला की फ़ीसें ये कहाँ से आ रही हैं? ये सवालात हैं जिनका जवाब मिलने बहुत ज़रूरी हैं, और हम इनके जवाब आपके सामने इन्हीं वीडियोज़ में लाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट राउन शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।